Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, Basic Arithmetic. Introduction. G. We often have to deal with the basic operations of arithmetic like plus, minus, multiplication and division, etc. And we are already very much well aware of these operations. G. We often have to deal with the basic operations of arithmetics. G. We have to deal with basic operations of arithmetic like plus, minus, multiplication and division, etc. And we are already very much well aware of these operations. Now, in this chapter, we are going to discuss some other operations of arithmetic like ratio, proportion, rates, percentage, etc., which are very helpful for solving business-related problems. लेकिन जी पहले हम जो है ना सिंपल अरिथमेटिक से हमारी वाकफियत है, जैसे प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं. इस चैप्टर में बेसिक अरिथमेटिक में हमने रेशो पढ़ेंगे जी, ठीक है, प्रोपोर्शन, रेट्स, ठीक है, परसेंटेज एक्सेट्रा, इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जी. तो बेसिक अरिथमेटिक मीन में हमने ये रेशो, प्रोपोर्शन, रेट्स, परसेंटेज वगैरह पढ़ेंगे जी. नाउ रेशो क्या होती है जी? sometimes we have to deal with the quantities whose comparison is required. जी देखिएगा, sometimes we have to deal with the quantities whose comparison is required. Suppose in a class of 45 students, जी मिसाल के तौर पे क्लास में 45 स्टूडेंट हैं, 30 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, उसमें से 30 बॉयज हैं और 15 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. भाई टोटल हमारे पास तादाद जो है ना वो 45 की है, 30 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं. देन वी कैन कंपेयर द नंबर ऑफ बॉयज विद द नंबर ऑफ गर्ल्स इन टू डिफरेंट वेज. भैया हम उसको दो डिफरेंट वेज से डिस्कस करेंगे जी. नंबर 1, there are 15 more boys than girls in the class. In this case, we are comparing the number of boys and number of girls by finding their difference. G. Number 2 है, the number of boys is twice the number of girls in the class. The number of boys is twice the number of girls in the class. Here we are comparing the number of boys and number of girls by finding a fraction consisting of the number of boys over the number of girls. The fraction is 30 over 15. By 30 over 15. The fraction is 30 over 15. भाई रेशो अब जरा देखिएगा, number of boys is twice the number of girls in the class. भाई ये देखें, नंबर ऑफ बॉयज जो है ना दुगने हैं नंबर ऑफ गर्ल्स. हेयर वी आर कंपेयरिंग द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय फाइंडिंग ए फ्रैक्शन कंसिस्टिंग ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज ओवर द नंबर ऑफ गर्ल्स. दैट इज फ्रैक्शन क्या बनेगी? 30 over 15. जी अब जरा देखिएगा, डेफिनेशन ये है, रेशियो इज द फ्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड. By ratio is a fraction. By ratio is a fraction of two quantities of same kind. In other words, ratio is a comparison of two homogeneous quantities. By ratio is the comparison of two homogeneous quantities. G. या तीसरा ratio is a division of two quantities A and B having same units. By third definition देखें, ratio is the division of two quantities A and B having same units. दोनों के units क्या होंगे जी? सेम होंगे जी.
It is denoted by A ratio B, A by B, or A ratio B, read as A ratio B. The order of quantities in ratio is different, is very important. G. भाई अंदर देखें A ratio B लिख रहे हैं is not equal to B ratio A. भाई the order of quantities in the ratio is very important. भाई order of quantities क्या थी in the ratio is very important. मतलब A ratio B is not equal to B ratio A. In ratio A ratio B, A is called antecedent and B is called consequent. G. G for example देखिएगा the ratio boy and girls, that is boys and girls 30:15 or 2:1, indicates that number of boys is twice the number of girls, and the girl ratio boys 1:2 indicates that there was half girls than half boys. G. अब देखिएगा रेशो has two units. Ratio has two units. If it is a numerical quantity which indicates how many times one quantity is greater than the other. बहरहाल देखिएगा जी, अभी हम मसाले करेंगे ना, ये थोड़ी सी डेफिनेशन आपने वैसे ज़्यादा दिन में रखनी है कि A रेशो B को आप इस तरह लिखना है, ठीक है जी, और A रेशो B इज नॉट इक्वल टू B रेशो A जी। भाई A रेशो B इज नॉट इक्वल टू B रेशो A जी। देखें A रेशो B का मतलब है A रेशो B और B रेशो A का मतलब B रेशो A इज नॉट इक्वल जी। और देखिएगा इन रेशो A रेशो B, A इज कॉल्ड, पहला जो होगा ना, इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड B इज कॉल्ड कंसिक्वेंट। जी। फाइंड द रेशो ऑफ, पहला है 50 ग्राम टू 200 ग्राम, 50 ग्राम टू 200 ग्राम। दूसरा पार्ट है 70 ग्राम टू 1 kg. द रेशियो 50 ग्राम टू 200 ग्राम कैन बी फाउंड इन टू वेज। भाई आप 50 रेशियो 200 लिख लें, इसको भाई आप 50 ओवर 200 कर लें, भाई काटेंगे तो 1/4 होगा। भाई ये भी आपका आंसर है। इस तरह 50 रेशियो 200 है, दोनों तो 50 से डिवाइड करते हैं तो 1/4। Hence ratio of 50 gram to 200 gram is 1:4. भाई रेशियो का 1:4, भाई 1:4 कर लें या 1:4 कर लें। अब 70 ग्राम टू 1 kg है, डिफरेंट यूनिट्स जी। भैया ये 7 ग्राम है और ये kg। फर्स्ट वी एक्सप्रेस देम इन द सेम यूनिट्स। आपने इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये 700 ग्राम है, ये 1 kg, 1 kg का 1000 ग्राम जी। भाई 1 kg किसके बराबर था? 1000 ग्राम का जी। भाई 1 kg बराबर था 1000 ग्राम का। अब आपके पास 700 रेशो 1000। भाई आप 100 से डिवाइड करोगे तो 7 रेशो 10 निकल आएगी जी। भाई 7 रेशो 10 निकल आएगी जी। जी आप देखें 70 ग्राम एंड 1 kg हैव डिफरेंट यूनिट्स। भाई दोनों के यूनिट्स डिफरेंट है, यूनिट सेम होंगे तो फिर आप बनेगी। लिहाजा फर्स्ट वी एक्सप्रेस देम इन द सेम यूनिट। भाई 700 ग्राम और रेशो 1 kg, तो हमने 700 ग्राम एज इट इज और 1 kg होता है 1000 ग्राम। तो याद रखिएगा 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम का जी। तो आपने दोनों तरफ सिंपल 700 और रेशो 1000 लिखना है। भाई 100 से डिवाइड करेंगे तो 7 रेशो 10 आएगा जी। जी सपोज 3 men received their profits as 4,000, 3,000 and 1,000. Find the ratio between their profits. भैया आपने उनके रेशो उनके प्रॉफिट्स में निकालने हैं। भैया देखिएगा हमारे पास है, सपोज देयर आर 3 men receive their profit as 4,000, 3,000 and 1,000. Find the ratio between देयर प्रॉफिट्स। आपने उनके रेशो के दरमियान प्रॉफिट्स निकालने हैं। भैया आपने उनके रेशो के दरमियान प्रॉफिट्स के दरमियान निकाली रेशो निकालनी है। फाइंड द रेशो बिटवीन देयर प्रॉफिट्स। भैया प्रॉफिट्स के दरमियान आपने रेशो निकालनी है। भाई सपोज देयर आर सपोज 3 men receive their profit as 4,000,
3000 and 1000. Find the ratio between their profits. जी, the ratio of their profit क्या होगा? 4000, 3000 and 1000. आप डिवाइड बाय 1000 करें तो 4:3:1 निकलेगा. भाई रेशियो ऑफ देयर शेयर इज क्या है? 4000, 3000 and 1000. आप 4000 से डिवाइड कर दें तो वी गेट 4:3:1. भजन बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर आईकॉम पार्ट 1, रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली, और ये पब्लिशर है जी हमारे पास इत्साम पब्लिशर. आप ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा जी. एग्जाम्पल 3, सिंप्लीफाई द रेशियो ऑफ 3.5 and 2.5. भाई सिंप्लीफाई द रेशियो ऑफ 3.5 and 2.5. जी जरा देखिएगा 3.5 और 2.5 है. भाई आप इसको क्या करेंगे? 3.5 को 35/10 कर लें और 25/10 कर लें. भाई आप क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 10 करें, फिर डिवाइड बाय क्या करें? 5 करें तो वी गेट 7:5. भाई वी गेट 7:5 जी. भाई सिंप्लीफाई द रेशियो ऑफ 3.5 and 2.5. तो भाई आपने 3.5 और 2.5 को आपने 35/10 और 25/10 लिख दिया. अब जब आपने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया हमारे पास 35:25 लिया जाएंगे. फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 7:5. ये हमारा आंसर आ जाएगा. नाउ एक्सप्रेस in the form of A/B and in fraction forms. भाई पहला है 25 और 45. भाई 25 और 45 आपने A/B लिखा 25 और रेशो 45, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो भैया 5:9. एंड इन फ्रैक्शन फॉर्म वी हैव A/B को भैया हमारे पास 5/9 निकलेगा. भाई आप अगर रेशो में लिखेंगे तो यूं लिख देंगे, अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो भैया A/B 25/45. आप 5 से भैया डिवाइड कर दें तो 5 कॉमन ले लें तो वी विल गेट 5:9. अगला है 30 minutes and 1 hour. भाई A/B 30 minutes and 60 minutes. भाई याद रखिए 60 मिनट किसके बराबर था? 1 hour के. भाई 60 मिनट किसके बराबर था? 1 hour के. ना डिवाइड बाय 30 कर दीजिए, वी गेट रेशियो 1:2. एंड इन फ्रैक्शन फॉर्म वी हैव A/B, वो हमारे पास 1:2 आ जाएगी. भैया हमारे पास रेशियो क्या गिरी? एंड इन फ्रैक्शन फॉर्म वी हैव A/B, तो भैया आपके पास क्या 1:2. भाई एंड इन फ्रैक्शन फॉर्म वी हैव A/B, तो 1:2 आ जाएगी.